এক নজরে বাংলার সেরা কয়েকটি খবরে নজর রাখব। তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি নিজের লেখা কবিতা শোনালেন। এই কবিতায় তিনি বাংলার সম্প্রীতির বার্তা দেন। অন্যায়ের সাথে আপোষ নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই দাঁড়াতে হবে বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে প্রবেশের মামলায় জোরদার ধাক্কা দিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। উল্লেখ্য, শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রবেশের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু হাইকোর্ট জানিয়ে দিল যে যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বদের একই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কাউকে আলাদাভাবে ব্যবস্থা দেওয়া যাবে না। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা ও অত্যাচারের কথা বাংলা ও দেশজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। এ নিয়ে শাসক দলের নেতৃত্বরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করেন। এ নিয়ে মুখ খুললেন আরএসএস নেতৃত্বরা ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তারা বলেন, কেউ বাংলা কথা বললে এইভাবে তাকে অত্যাচার করা ঠিক না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিবসের সভাতে যোগদান করতে আসার পথে হামলার শিকার দুই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা। লিলুয়া ও হাওড়ার মাঝখানে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা বলেন যে যখন তারা স্লোগান দিয়েছিল তখনই তাদের উপর আচমকা হামলা করে কিছু দুষ্কৃতী। কে বা কারা হামলা করেছে এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে মেজাজ হারালেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, রাজ্যের একাধিক বেহাল রাস্তার কথা মন্ত্রী তথা কৃষ্ণনগরের দক্ষিণের বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাসের কাছে অভিযোগ জানায় গ্রামবাসীরা। এতে রেগে যায় মন্ত্রী, এমনকি ধমকও শুনতে হয় গ্রামবাসীদের। দুর্গাপূজার অনুদান নিয়ে সিপিএম দায় করা মামলা খারিজ। বহাল থাকবে দুর্গাপূজার অনুদান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য, মাস তিনেক আগে রাজ্য সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেক দুর্গা মণ্ডপকে 1,10,000 টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এতে সিপিআইএম পক্ষ থেকে বিরোধ করা হয় রাজ্য সরকারের এই নতুন অনুদানে। কিন্তু হাইকোর্ট পরিষ্কার করে দিলেন দুর্গাপূজা অনুদান নিয়ে কেন কোনো বাধা নেই। উল্লেখ্য, মাস তিনেক আগে রাজ্য সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেক দুর্গা মণ্ডপকে 1,10,000 টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এতে সিপিআইএম পক্ষ থেকে বিরোধ করা হয় রাজ্য সরকারের এই অনুদান নিয়ে। কিন্তু হাইকোর্ট পরিষ্কার করে দিলেন দুর্গাপূজার অনুদান নিয়ে কোনো বাধা নেই। দুর্গাপূজার অনুদান নিয়ে সিপিআইএম মামলা হাইকোর্ট খারিজ করতে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কুণাল ঘোষ সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, শকুনের রাজনীতিতে জল ঢেলে দেওয়া হলো। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে জোড়া পদ্ম ফুল ফুটল। উল্লেখ্য, সমবায় সমিতি নির্বাচনে 12টি আসনের মধ্যে 12টিতেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল। অপরদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে 9টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। ফলাফল শেষে 12টিতে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে। সবুজ আবিরে মেতে উঠল তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই জয় অনেকটা অক্সিজেনের কাজ দিবে বলে জানিয়েছেন অভিজ্ঞরা। অপরদিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে বিজেপির পরাজয় মুখ পড়ল বিরোধী দলনেতার বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে বিধায়ক ও জয়েন্ট বিডিওকে আটক করল জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা স্বরূপনগর বালতি নিত্য নন্দকাঠি গ্রামে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনকে তব্য কটাক্ষ মমতা ব্যানার্জির। তিনি বললেন, জীবন থাকতে কারো ভোটার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে দিব না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি সামাল দিতে রোশন গিরিদের সাথে বৈঠক করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সৌমিক ভট্টাচার্য। রাজ্যের নতুন প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্প পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা গোয়ালপুকুর বিধানসভার বিধায়ক গোলাম রাব্বানি। পরিদর্শন করার পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। কি বলছেন তিনি, চলুন আমরা শুনে নেব। क्या गलती थी उन लोगों की? इसी अगस्त में तो हुआ सारा चीज। 15 दिन पहले की बात है। सारे बच्चों को उठा के लेके चले गए कहा आपका किसी पुलिस स्टेशन में। क्या करने लेके गया? कौन पुलिस स्टेशन का पुलिस है नहीं जानता है, क्या का पुलिस है ये भी नहीं जानता है। पैर बांध करके मारना शुरू किया। मारते 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 सेंसलेस हो जाता था। पैर तोड़ा गया, सीने के बल छुड़ाया गया। 70 केजी 80 केजी का वजन का आदमी जो है यहाँ बैठ जाता था, बैठ के धमक देता था कि बोलो कि तुम बांग्लादेशी हो, बोलो हम बांग्लादेशी हैं। वो सामने जो है उसका क्या कहते हैं रिकॉर्डर रख दिया है, सामने वीडियो कैमरा रख दिया है और कहता है बार बार कि तुम बोल दो हम तुमको मारेंगे नहीं।
तो बोला कि सर हम नहीं बोल सकते, आज अगर हम बोल दिए तो सर ये तो हम इकबाल कर लिए, मान लिए कि हम जो है बांग्लादेशी हैं, तो मेरा बाप भी हमको बचा नहीं पाएगा सर, क्योंकि ना आधार कार्ड की, राशन कार्ड की, जो आप नहीं मान रहे हैं। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का नमक खाए हैं, हिंदुस्तान में हमारे शहीद, हमारे पुरखों ने शहादत दिया है। 61,000 लोगों का नाम जो है आज इंडिया गेट में रखा हुआ है। हम हिंदुस्तानी हैं सर, हमारे कब्रिस्तान है यहाँ, हमारे ईदगाह है, हमारे मस्जिदें हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे सारी चीज़ें हैं। हम कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश सिखा देंगे? हम नहीं कह सकते। फिर लास्ट में सीने के बल सुनाया गया, यहाँ एक आदमी बैठता 70-80 kg का, फिर पीटना शुरू कर देता है, पीटते 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 पैर हाथ तोड़ देता है। लास्ट में जब नहीं बोलता है तो नाक में जो डालते हैं, एक गंदगी रहती है अगर, तो बार बार उंगली तो वहीं घुसता है नाक में। एक धूल अगर घुस जाता तो बार बार छींक होता है। उस नाक में अगर गर्म पानी डाले, वो कैसा मंजर होगा? कयामत का मंजर होगा। मुंह में अगर गर्म पानी डाले, इससे बुरी बात, इससे हैवानियत का और दरिंदगी नहीं हो सकता है। तो अंदाजा लगाइए कि आज हमारे बच्चे वहां परेशान हुए, तो हमको खबर किया किसने? अहमद बाबू ने, हमारा यहाँ का जैनुल साहब, फंजू साहब, अहमद भैया, उसके बाद जो है मोनी। हमने फौरन दीदी को दीदी को कैबिनेट में बोला कि दीदी हमको बोली हमारे को पीडीएफ पढ़ती पाठे दो। सब डॉक्यूमेंट्स लेके पीडीएफ करके भेज दिया। भेज देने के बाद वो उन्होंने किसको दिया? हमारे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वहाँ का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिया। उसके बाद जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार, हमारा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद समीर साहब को दिया। जावेद समीर साहब जो है आपका राजेश कुमार को दिया, आईजी राजेश कुमार जो है डीआईजी सुधीर कुमार को दिया, सुधीर कुमार जो एसपी को दिया, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजीपी, हमारा दीदी। हम खुद वहाँ बात किए कि भाई आधार कार्ड नहीं मानोगे, आधार कार्ड तो तुम्हारा क्या हुआ है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, क्यों नहीं मानोगे? तुम मानने वाले कौन होते हो या नहीं मानने वाला कौन होते हो? वो तुम्हारे या हमारे बच्चे जाकर के तुम्हारा इकोनॉमी को बढ़ाया है। तुम्हारा फैक्ट्री का मालिक जो है कल 2 लाख रुपए में था, आज 2000 करोड़ का मालिक हो गया है। तुम्हारा स्टेट का रेवेन्यू को बढ़ा दिए हैं। अब तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम अगर नहीं मानोगे तो हम अब एमएलए के हिसाब से सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये सर्टिफिकेट अगर तुमको तुम्हारा बाप का ताकत है तो तुम इनकार करके दिखा दो। 60,000 सर्टिफिकेट मैंने जो इशू किया। इशू करने के बाद जो है कल ये मौलाना साहब के यहाँ गए थे हम, ठिकरी बाड़ी। वो मौलाना साहब हमको कह रहे थे कि हजरत अल्लाह आपकी सेहत अच्छा रखे। क्यों? ये सर्टिफिकेट इतना काम आया है वहाँ, आपको हम बता नहीं सकते हैं कि ये अगर नहीं भेजते आप तो शायद बच्चे अब तक जेल में रहते हैं। नहीं, उसका बाप का ताकत नहीं कि हमारे बच्चों को जेल में रखेगा। हमको लड़ाई करना था, लड़ाई कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक औरत आपके गुत्ती ग्राम पंचायत का, मैं सुना उसको डिपोर्ट कर रहा है कहाँ? बांग्लादेश। एक औरत को हमारे यहाँ का अगर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दे, बांग्लादेश पुशबैक कर दे, क्या हालत होगा उस औरत का? अंदाजा लगाइए। एक जो है भेज दिया है बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी, वो हिंदी वो उर्दू बोलने से पाकिस्तानी। इसलिए दीदी ने बोली कि रब्बानी तुम्हारे वॉल पकड़ जो नो आरेकटा आमी स्कीम नहीं आसছি। लेबर मिनिस्टर को बोला तुमको रब्बानी एडवाइस करनी है ना, तो कत হবে रब्बानी तुम्हारे ওখানে? दीदी 80,000 থেকে বেশি लोग, 80,000। वो वाकई में कितना लोग होगा आजाद वहां? 1 लाख से ज्यादा आदमी होगा। तो हमारा सवाल है कि आज उन लोगों के लाने के लिए ये सर्वश्री स्कीम कर दिया गया है। 5,000 रुपए भाड़े के शकल में, अगर काम नहीं दे पाए तो 5,000 रुपये उसको ऑनर दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा कि भाई आप 5,000 में राशन फ्री है आपके लिए स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा, आपका सारा स्कीम मिलेगा, सारी चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद वो सर्वश्री स्टार्ट हो गया है। आज जो है हमारे ग्वालपोर का कत सर्वश्री रजिस्ट्रेशन हो आगे 12,000 था, अभी भी इसमें जो है कम से कम 20-25 हज़ार हो जाना चाहिए। 20-25 हो जाए, हर दिन 2,000 करके हो रहा। आप अंदाजा लगाइए। ये तो हमारा 2 अगस्त से चल रहा है, ये 21 अगस्त से चल रहा है। ये कर दिया। कौन सा मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल? आप वेस्ट बंगाल को बात दे करके हिंदुस्तान में बताइए एक तो मुख्यमंत्री का नाम। पूरे दुनिया में बता दीजिए आप लोग
कि पंचायत बेटे इसको अगर किया है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अरे भाई थोड़ा सा हमें भी जो हमको भी सोचना चाहिए कि हम 3 बॉर्डर के अंडर में हैं, इधर चाइना बॉर्डर, इधर नेपाल बॉर्डर, इधर बांग्लादेश बॉर्डर, इधर किशनगंज बॉर्डर। हम अगर फिक्र नहीं करेंगे कल तो हवा हो जाएंगे। इसलिए आज जो है हम आए हैं किसके लिए? हमारे पारा आवाज नहीं निकल